بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں آپ کا میزبان صاحب شاکر. وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے کچھ تازہ ترین اور اہم معلومات آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. پاکستان کے حالات و واقعات، سیاسی صورتحال، جس مقصد کے لیے 26ویں غیر آئینی ترمیم کی گئی اور جس مقصد کے لیے اتنا بڑا سٹیج تیار کیا گیا، لوٹے خریدے گئے، ہارس ٹریڈنگ کی گئی، 63A کا قانون تبدیل کروایا گیا، فیصلہ تبدیل کروایا گیا، اپنی پسند کے بینچ بنوائے گئے، وہ سارے کا سارا جو پروگرام ہے وہ مجھے بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے. اور اس لیے نظر آ رہا ہے کہ جس طریقے سے سپریم کورٹ آف پاکستان کو قابو کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، کنٹرول کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، جو سوچا گیا تھا وہ ہو نہیں رہا. اور ان کا جو سارے کا سارا پلان ہے وہ ابتدائی 2-3 دنوں میں ہی مجھے زبردوس ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. کیونکہ ان کے جو مقاصد تھے، وہ مقصد تو یہ تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کو کچلنا ہے، عمران خان صاحب کو کچلنا ہے، تمام سیاسی قیدیوں کو، اور ایک پولیٹیکل وکٹمائزیشن، سیاسی انتقام کو عروج پر پہنچانا ہے، صحافت کو کنٹرول کرنا ہے، جھوٹے بے بنیاد مقدمات کو ہم نے اپنی مرضی کے مطابق چلانا ہے. یہ سب کچھ ایک طے شدہ پلان کے تحت کیا گیا تھا. اور یہ جو 26ویں غیر آئینی ترمیم ہے، اس کا مقصد کوئی اصلاح احوال تو تھا نہیں کہ ہم نے سسٹم ٹھیک کرنا ہے، ہم نے چیزوں کو ٹھیک کرنا ہے، عوام کو فائدہ پہنچانا ہے. ایسا نہیں تھا، بلکہ یہ سارے کا سارا ایک پروجیکٹ، ایک لندن معاہدہ، اور اس لندن معاہدے کا جو ایک اہم ترین کردار تھا، جب وہ اپنی موت آپ مر گیا اور اس کی ریٹائرمنٹ کا ٹائم آ گیا اور وہ ریٹائر ہو گیا، تو اس سے پہلے یہ حفاظتی انتظامات کرنے تھے، متبادل انتظامات کرنے تھے کہ انتہائی اہم ترین مہرہ جو ہے قاضی صاحب، وہ تو اب لندن معاہدے والے جو ہیں وہ تو جا رہے ہیں، کیونکہ ان کو ہم باوجود کوشش کے ایک تو وہ 13 مہینوں کے اندر کچھ بھی نہ کر سکے جو کہ ہم نے سوچا ہوا تھا. مظالم بہت ڈھائے گئے، انسانی حقوق پامال کیے گئے، ماؤں بہنوں بیٹیوں کی عزتوں کو پامال کیا گیا، وہ سب کچھ کیا گیا، اور سینکڑوں نہیں ہزاروں سیاسی کارکن اور وہ جیلوں میں ڈال دیے گئے، صحافت کو تباہ و برباد کر دیا گیا. ابھی بھی صحافی جیلوں میں ہیں، یا پھر ان کے خلاف جھوٹے بے بنیاد مقدمات ہیں، بول نہیں سکتے، بولتے ہیں تو ان پہ دہشت گردی، بغاوت، غداری کا مقدمہ درج کر دیا جاتا ہے. یہ سب کچھ کیا جا رہا تھا. لیکن اسی ماحول میں 13 مہینوں کی اس بدماشیہ نے کھل کر سب کچھ، تمام اختیارات استعمال کیے، سسٹم استعمال کیا، اداروں کو استعمال کیا، لیکن وہ کامیاب نہ ہو سکے. اور ان کا جو ٹارگٹ تھا وہ یہ تھا کہ کسی بھی طریقے سے سب کو جیلوں میں ڈال کے، سزائیں سنا کے، اور فوجی عدالتیں قائم کر کے مقدمات نمٹا دیے جائیں. لیکن ایسا نہیں ہو سکا، اور بالآخر وہ جو ہے بدترین مہرہ جو ہے وہ رخصت ہو گیا، اور اس نے فوراً ہی پاکستان بھی چھوڑ دیا. اب آتے ہیں ذرا جسٹس یحییٰ افریدی صاحب، چیف جسٹس آف پاکستان. وہ ان کا پہلا دن ہے، اور انہوں نے پہلے دن ہی جو احکامات صادر کیے ہیں اور جو فیصلے کیے ہیں، ان فیصلوں کی روشنی میں بہت کچھ نظر آ رہا ہے. اور جس طریقے سے عدلیہ کو توڑنے کی کوشش کی گئی تھی، ججز کو تقسیم کرنے کی کوشش کی گئی تھی، وہ سارے کا سارا پروگرام ملیا میٹ ہوتا نظر آ رہا ہے. اس میں جو پہلے احکامات انہوں نے جاری کیے ہیں، کچھ پچھلا ولاگ ضرور سن لیجیے گا، اس میں نے کچھ باتیں بتائی ہیں، اور کچھ مزید انہوں نے فیصلے فرمائے ہیں. ایک تو یہ کہ فوری طور پہ بینچ تشکیل دے دیے گئے ہیں، اور نئی جو پرانی اصل ججز کمیٹی ہے وہ بحال کر دی گئی ہے، اور چیف جسٹس یحییٰ افریدی صاحب، جسٹس منصور علی شاہ صاحب اور جسٹس منیب اختر صاحب، یہ ججز کمیٹی ہے. انہوں نے بینچ تشکیل دے دیے ہیں، 8 بینچ تشکیل پا چکے ہیں، اور وہ منڈے سے باقاعدہ طور پہ مقدمات کی سماعت شروع کر دیں گے. اور اس میں جو بینچ تشکیل دیے گئے ہیں اس میں جسٹس یحییٰ افریدی صاحب ہیں، شاہد بلال صاحب ہیں، بینچ 1 ہے. بینچ 2 جسٹس منیب اختر صاحب، جسٹس ارمن اللہ صاحب کا ہے. بینچ اس کے بعد نیکسٹ بینچ ہے جی جسٹس امین الدین خان ہیں، جسٹس عرفان سعادت خان ہیں، جسٹس جمال خان مندوخیل، جسٹس مسرت ہلالی، جسٹس ملک شہزاد صاحب. فل بینچ 1 ہے، باقی سب ڈویژن بینچ ہیں. جسٹس عائشہ اے ملک اور جسٹس عقیل عباسی ہیں، جسٹس شاہد وحید اور جسٹس نعیم اختر افغان ہیں، اور جسٹس سردار طارق مسعود اور جسٹس مظہر عالم خان، یعنی کہ یہ 2 ایڈہاک ججز ہیں، ان کو الگ ہی رکھا گیا ہے اور ان کو مقدمات الگ ہی دیے گئے ہیں. اس طریقے سے ایک اور فیصلہ کیا گیا ہے، اور وہ فیصلہ اب ہے
जो फुल कोर्ट इजलास बुला लिया गया है तमाम ऑनरेबल जजेस का 28 अक्टूबर को, और इसका भी बाकायदा तौर पे ऑर्डर जारी कर दिया गया है। 28 अक्टूबर को 1 बजे यानी कि अदालती वक्त खत्म होने के बाद ये फुल कोर्ट मीटिंग होगी। इसमें जस्टिस मंसूर अली शाह साहब नहीं होंगे, वो उम्रे की अदायगी के लिए बाहर हैं, जबकि बाकी तमाम ऑनरेबल जजेस होंगे। और इत्तला ये है कि जैसे ही जस्टिस मंसूर अली शाह साहब होंगे, फुल कोर्ट मीटिंग भी दोबारा बुला ली जाएगी। और ये वो तमाम इक़दामात उठाए जा रहे हैं जो कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने अपने खत में लिखे थे, और जस्टिस मुनीब अख्तर साहब भी इन्हीं इक़दामात के हामी थे कि सबसे पहले पुरानी जजेस कमेटी बहाल की जाए जो कि आइन और कानून के मुताबिक है, और दूसरा फुल कोर्ट मीटिंग बुलाई जाए और उसमें जो अहम उमूर हैं उसमें डिस्कस किए जाएं और उसमें फैसला किया जाए। जो सुप्रीम कोर्ट के अंदरूनी मामलात में हुकूमत मुदाखलत कर रही है, उस मुदाखलत को कैसे रोकना है। इसके साथ साथ एक तीसरा फैसला भी किया गया जी, और वो है कि फुल कोर्ट मीटिंग जो है वो बुलाई गई है। तीसरा बड़ा फैसला वो है इंसदादे दहशत गर्दी के अदालत के तमाम जज साहिबान, यानी कि मुल्क भर में जो इंसदादे दहशत गर्दी अदालत के जज साहिबान हैं उनका एक अहम इजलास बुला लिया गया है, और ये इजलास है 7 नवंबर को बुलाया गया है। ये मैं आपको बता दूं कि इंसदादे दहशत गर्दी अदालत के जज साहिबान के पास इस वक्त जो ज्यादातर मुकदमात हैं, झूठे बेबुनियाद मुकदमात, वो यही हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुतालिक, सहाफ़ियों से मुतालिक, और सियासी कारकुनान से मुतालिक, और सियासी रहनुमाओं से मुतालिक। ज्यादातर दहशत गर्दी के मुकदमात वही चल रहे हैं, जिसकी वजह से सैकड़ों नहीं हजारों कारकुन, हजारों सियासी कारकुन जो हैं और सहाफ़ी जो या तो पाबंद सलासिल हैं या उनके खिलाफ बेबुनियाद झूठे मुकदमात दर्ज किए गए हैं। इसलिए जस्टिस याहिया अफरीदी साहब ने तमाम इंसदादे दहशत गर्दी अदालत के जज साहिबान की मीटिंग जो है वो बुलाई है, और साथ ही उन्होंने कहा है कि अपनी अपनी प्रोग्रेस रिपोर्ट्स भी लेके आएं। उसकी वजह यह है कि महीनों से नहीं बल्कि सालों से मुकदमात चल रहे हैं, ना ही चालान पेश हो रहे हैं, और सियासी कारकुन, सियासी रहनुमा जेलों में गल सड़ रहे हैं, और उनमें खवातीन भी हैं। नाम मेंशन करने की जरूरत नहीं है, लेकिन बेशुमार हैं। और यही वजह है कि इंसानी हकूक की आलमी तंजीमें, अक़वाम मुत्तहिदा इंसानी हकूक की कमेटी, कांग्रेस, अमेरिकन कांग्रेस या यूरोपीय यूनियन और दीगर जो इंसानी हकूक की तंजीमें हैं, वो सब की सब पाकिस्तान को इस वक्त वर्स्ट कंडीशन में शुमार कर रही हैं। एक आपके साथ मैं रिपोर्ट भी शेयर करने लगा हूं, जिसके मुताबिक जो ये जाहिर करती है कि पाकिस्तान दुनिया भर में इस वक्त बदनाम हो रहा है। और इसके साथ साथ जी आलमी ज़राए अबलाग ने और आलमी इदारों ने, आलमी तंजीमों ने, इंसानी हकूक की तंजीमों ने जिस तरीके से 26वीं गैर आइनी तरमीम को रिपोर्ट किया है और इसका मकसद बताया है, वो भी सबके सामने है। एक और जस्टिस याहिया अफरीदी साहब ने, चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने एक और मीटिंग कॉल की है, और वो मीटिंग है जनाब, और एक बात बता दूं कि ये जो इंसदादे दहशतगर्दी अदालत के जज साहिबान को बुलाया गया है, ये मैं पूरे वसूख से कहता हूं कि 99% इंसदादे दहशतगर्दी अदालत के जज साहिबान इस वक्त अंडर प्रेशर काम कर रहे हैं। और जस्ट ताहिर साहब ने तो, सरगोदा के जज ने तो बाकायदा तौर पे खत भी लिख दिया था कि मुझे किस तरीके से एक सेक्टर कमांडर की तरफ से धमकियां मौसूल हुई, और जब मैंने इनकार किया मुलाकात करने से तो फिर मेरे घर के बाहर फायरिंग की गई, मेरे घर का गैस का मीटर उतार कर ले गए, ट्रांसफार्मर पर फायरिंग की गई, और मुसलसल मेरे अजीज़ व अकारिब को भी धमकियों का निशाना बनाया गया। इसलिए ये जो मीटिंग है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वक्त 9 मई से रिलेटेड जितने मुकदमात हैं, 9 मई की आड़ में और उसके बाद रजीम चेंज ऑपरेशन के नतीजे में जो झूठे FIR दर्ज की गई हैं, वो सब की सब इन्हीं इंसदादे दहशतगर्दी अदालत के जज साहिबान के सामने जाती हैं। एक मैं छोटी सी मिसाल देता हूँ। ये जो डी चौक पे एहतजाज हुआ था, जिसमें खैबर पख्तूनख्वा हाउस पे हमला किया गया और अली अमीन गंडापुर को गिरफ्तार करने की कोशिश की गई, और फिर किस तरीके से सरकारी अहलकारों को गिरफ्तार किया गया, और ऑफिशियल जो तो खैबर पख्तूनख्वा गवर्नमेंट के ऑफिशियल स्टाफ है, वजीर आला का ऑफिशियल स्टाफ है, उनको गिरफ्तार किया गया, और फिर उन पे दहशतगर्दी के मुकदमात दर्ज किए गए, और कल जब उन सब की जमानतें नहीं बल्कि डिस्चार्ज किया गया तो उनको दोबारा गिरफ्तार करके और दोबारा जो संगजानी हमले वाला कैदी वैन पे हमला और फायरिंग का ड्रामा रचाया गया, ये सारे के सारे मुकदमात इन्हीं अदालतों में हैं। और फिर एक और बात बता दूं कि ये जो डी चौक वाला मुजाहरा था, सिर्फ 2 FIR दर्ज हुई हैं,
एक FIR में 3000 लोगों को नॉमिनेट किया गया और एक FIR में 4000 लोगों को नॉमिनेट किया गया, और उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सारी लीडरशिप का वो खैबर पख्तूनख्वा से अराकीन कौमी असम्बली, अराकीन सूबाई असम्बली, सुप्रीम कोर्ट के वकला, हाई कोर्ट के वकला, किसी को भी नहीं बख्शा गया। और इंतजार हुसैन पंचोता अभी तक भी लापता हैं और दीगर बेशुमार लोग जो हैं वो लापता हैं। इसी तरीके से डिजिटल मीडिया के लोग, सोशल मीडिया के लोग और मेन जो हमारी स्ट्रीम में टेलीविजन चैनल पे काम, वो उन सहाफियों के खिलाफ भी इन्हीं अदालतों में मुकदमात और फिर कई दिन तक रिमांड दिया जाता है और फिर कोई पुरसाने हाल नहीं होता। इसके साथ साथ जी एक और भी एक मीटिंग कॉल की है जस्टिस याहिया अफरीदी साहब ने, और वो कॉल की है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की मीटिंग, और ये मीटिंग होगी 8 नवंबर को। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में आपको मैं बता दूं कि कौन कौन होता है। उसमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी हैं, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब हैं, जस्टिस मुनीब अख्तर हैं, और दो सीनियर मोस्ट चीफ जस्टिस हाई कोर्ट्स के हैं। तो इस तरीके से ये सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की मीटिंग कॉल की गई है, और ये 8 नवंबर को इस मीटिंग में भी क्या होना है मैं आपको बता दूं कि ये भी एक अहम तरीन एजेंडा है, और जो जजेस के खिलाफ शिकायत आई हुई हैं उनका जायजा लिया जाएगा, नंबर 1। नंबर 2, जो 6 जज साहिबान ने खत लिखा था इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को, और उसको टेकअप नहीं किया काजी साहब ने और उसको दबाने की कोशिश की, वो मामला भी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जेर बहस आएगा। इस तरीके से ये भारी भरकम जो एजेंडा है वो आ चुका है, और जस्टिस याहिया अफरीदी साहब जो हैं वो इन सारे मामलात का जायजा लेंगे, और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब और जस्टिस मुनीब अख्तर साहब उनके साथ होंगे। ये जो सारी सिचुएशन मैं आपको बता रहा हूँ कि इंतजाज दहशतगर्दी अदालत के जज साहिबान को बुलाया गया है, ये मेरे सामने जी एक रिपोर्ट पड़ी है। पाकिस्तान का नंबर 142 मुल्कों में से 129वें नंबर पर है। बदतरीन मुल्कों की फहरिस्त में शामिल है पाकिस्तान का नाम, जहां पे पाकिस्तान उन मुल्कों में शामिल है जहां पे लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन यानी अमनो अमान खराब तर वर्स्ट है, और उसके साथ साथ सिक्योरिटी की सिचुएशन वर्स्ट है, बदतरीन हालत में है, और जिसकी वजह से आप जाहिर है कि निज़ाम इंसाफ जहां का बर्बाद हो चुका है। इन सारी चीजों को जो है वो देखा जा रहा है, और पाकिस्तान दुनिया भर में बदनाम हो रहा है। तो ये हैं वो मामलात, ये हैं वो चीजें जी जिनको जस्टिस याहिया अफरीदी साहब ने फौरी तौर पे टेकअप किया है, और इसके जो सबसे इसमें असल खबर है वो यही है कि उन्होंने जस्टिस मंसूर अली शाह साहब और जस्टिस मुनीब अख्तर साहब को अपने साथ रखा है, और मुख्तलिफ कमेटियों से जस्टिस अमीन साहब को फारिग कर दिया है, और काजी साहब की बाकियात को फरागत का सिलसिला जो है वो जारी और सारी है। ये हैं वो सिचुएशन, ये है वो सूरत हाल जिसकी वजह से मामलात खराब से खराबतर हो रहे हैं पाकिस्तान के, और दावे बहुत बुलंद बांग दावे किए जा रहे हैं, लेकिन हकीकत यह है कि ग्राउंड पे कोई सूरत हाल अच्छी नहीं है। अब देखते हैं कि इनको कैसे टेकअप किया जाता है, और किस तरीके से अब गवर्नमेंट जो है वो कैसे इनको रोकती है, क्योंकि उन्होंने रोकना तो है, और उनका जो मकसद था वो सारे का सारा मकसद तो फौत हो चुका है जो उन्होंने सोचा था तरामीम के हवाले से। क्योंकि इस वक्त सिचुएशन ये है कि खैबर पख्तूनख्वा के सूबाई असम्बली के अरकान वो गिरफ्तार हैं, सेनेटर गिरफ्तार हैं, और कौमी असम्बली के अरकान खैबर पख्तूनख्वा असम्बली, कौमी असम्बली, सेनेटर्स ये भी गिरफ्तार हैं, और यहाँ तक के पार्लियामेंट हाउस पे भी लोगों को अगवा किया गया। अगवा बराए तवान, अगवा बराए बयान, अगवा बराए तरमीम, अगवा बराए वोट, ये सिलसिला जारी और सारी है। ये सारे चैलेंजेस हैं जो कि सामना कर रहे हैं, सामना है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याहिया अफरीदी साहब को। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।